एक्वास्टार नहीं है क्या? घर या ये एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम, ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट। एक्वास्टार। Commander Nikhilesh Mathuria. I am the Commander Air of this air station, which is in civil parlance we'll call it the Chief Operations Officer. So I control the air operations. All the aircraft which are taking off from this place, including the civil operations, are under the control of this office. From you can see the air traffic control, and there are various operations. The missions when the aircraft goes south or north for surveillance, all operations are controlled. And as far as civil operations are concerned, we provide them landing, parking and other facilities so that they can carry out their operations effectively. The bird control, that is also with INS Utkarsh, and we on behalf of the commanding officer Utkarsh and on behalf of the Andaman and Nicobar command, we do it for the civil population. As you are all aware, the lifeline of Andaman and Nicobar Island is this airport, sir. This airport was under renovation. Runway resurfacing was going on, and that time there were lots of hue and cry because airport used to be closed for 4 days and it used to be open for 4 days. So I hope everybody can understand the significance of this airport. It is our endeavor as part of Indian Navy to keep this operational alive, and the best and the latest state of the art technologies are available to this airfield. So Indian Navy had conceived this vision which is called MAFI project. We have got 4 major equipment, which is the airfield lighting system, the approach lighting system which is modified for Cat 2 ILS, and the precision path approach indicators. So that gives the landing system. Other than that, the AI has also taken a lead and they have provided the instrument landing system which is ILS Cat 1 system. With that approach system, the aircraft can come down to about 200 feet, and thereafter in good bad weather conditions as well as night conditions, aircraft can land. So this is the demonstration today that night capability of this airfield has, because there, but post surfacing and new equipment, state of the art equipment which can provide better visibility to the aircraft and which can provide landing platform which is better for the aircraft to come. So as part of that, today we will have one Dornier and one ALH aircraft which will be taking off after the night. The night sunset is at around 1700, they will be taking off at around 1800, and using this airfield approach lighting system, they will be carrying out the landing. So this is a message to all the islanders that airfield is available, capable for landing by night, and we urge the civil operators to make use of this facility. Somebody has to go late in the evening to Delhi and come back. Somebody from mainland has to come early in the morning, finish some work and go back in the evening. All these things will be possible, like these things are possible in mainland in any other city. That's all from my side. After some time we'll call the commanding officer. You can interact, you can have any question and answers. We'll be glad to answer all of them. तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह तकरीबन 1200 किलोमीटर मेनलैंड इंडिया से है, और यहाँ पर 4 एयरफील्ड हैं। पोर्ट ब्लेयर है, कार निकोबार है, डिगलीपुर है और कैम्बल बे है। इन 4 एयरफील्ड में से सिर्फ पोर्ट ब्लेयर एयरफील्ड है जो कि डुअल यूज़ है इस समय, और यहाँ पर डुअल यूज़ कहने का मतलब है मिलिट्री एयरक्राफ्ट भी लैंड करते हैं और सिविल एयरक्राफ्ट भी लैंड करते हैं। अभी रीजनल स्कीम उड़ान के तहत डिगलीपुर से कुछ उड़ान स्टार्ट होने वाले हैं। एयरफील्ड लाइटिंग सिस्टम के आने के बाद अभी तक हम लोग जो सिर्फ दिन में फ़्लाइट लैंड करती थी, सिविल फ़्लाइट, मिलिट्री फ्लाइंग तो हमारी 24/7 चलती है 365 दिन, उसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन सिविल फ़्लाइट के लिए कुछ रिक्वायरमेंट है, सेफ्टी रेगुलेशंस हैं, उनके तहत ये एयरफील्ड लाइटिंग सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था। इसके होने से सिविल फ़्लाइट अब यहाँ से ऑपरेट कर सकती हैं 24/7। सो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा टूरिस्ट सीज़न अभी शुरू होने वाला है कुछ समय में। टूरिस्ट सीज़न के टाइम पे तकरीबन 30 से 35 फ़्लाइट यहाँ आती हैं। दिल्ली से कुछ फ़्लाइट आ रही हैं, बॉम्बे से फ़्लाइट आ रही हैं, लेकिन रात को नहीं आ पाती हैं। सो ये फ़्लाइट्स अगर रात को आ जाएंगे तो टूरिज़्म को बहुत बढ़ावा मिलेगा यहाँ पर। जो लोग फ्राइडे को वहाँ से चल सकते हैं, अगर यहाँ पर फ्राइडे को आ जाएंगे, 2 दिन यहाँ रुक करके संडे की रात को या फिर मंडे को जा सकते हैं, उससे बहुत बढ़ावा मिलेगा।
So it's a good step in the right direction, and a large amount of work is now required to be done by the civil administration to give boost and thrust to the tourism, and probably take the hotel industry and other operators into the same sync. This is just a one step. सर लास्ट 1 वीक पहले इंडिगो का थ्रू लैंडिंग सिस्टम ट्रायल किया गया करके वो लोग कंफर्म कर दिए थे कि फुल सेटअप हो गया करके, बट आज हम लोग को मालूम हुआ कि अभी फुल सेटअप इक्विपमेंट सब लगाया करके। करेक्ट। कितना ओके, इंडिगो फ्लाइट एक आई थी 18 अप्रैल को, उसने पहली इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम किया था। इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम का कहने का मतलब है ILS। उससे अगर विजिबिलिटी खराब है और मौसम खराब होने के टाइम पर एयरक्राफ्ट को एक इंस्ट्रूमेंट गाइडेंस मिलता है, बिना कुछ देखे भी आप एयरक्राफ्ट को यहाँ पर लैंड कर सकते हैं। कुछ इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम ऐसे होते हैं जब विजिबिलिटी अगर जीरो है, आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पर खड़े मुझे आदमी ये नहीं दिख रहा है और क्लाउड बेस बिल्कुल जमीन तक है, तो भी एयरक्राफ्ट लैंड करते हैं। वो कैट 3 ILS होते हैं, कैट 3 ILS, कैट 3C होते हैं। यहाँ पर हमारा कैट 1 ILS लगा हुआ है, जो कि एक प्रिसिशन अप्रोच गाइडेंस सिस्टम है। उसके साथ साथ एफी लाइटिंग सिस्टम को कंबाइन करने के साथ साथ आज जो हमने कमीशन किया है, दिस एयरफील्ड नाउ बिकम्स अ प्रिसिशन अप्रोच रनवे। कहने का मतलब है बैड वेदर में, रात में, बुरे मौसम के टाइम पर भी मिलिट्री एयरक्राफ्ट हो या सिविल एयरक्राफ्ट हो, दोनों लैंड कर सकते हैं। सर अंडमान में देखेंगे कि ये आप जो वेदर का जब बोल रहे हैं कि वेदर के कंडीशन के पीछे बहुत सारा फ्लाइट डिले हो रहा है और कैंसिल हो रहा है सर, तो इसका बाद जो आने वाला सीजन में इस तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा या फिर पॉसिबिलिटीज है तभी? नहीं। इसके दो पहलू हैं। देखिए, वेदर जब खराब होता है तो हर जहाज यहाँ पर लैंड नहीं कर सकता, और जहाज को लैंड करने की काबिलियत एक पायलट की होती है। कोई पायलट कम एक्सपीरियंस होते हैं, कोई पायलट ज़्यादा एक्सपीरियंस है। एक बहुत बड़ी पेक्युलरिटी है जो कि ये हमारे सामने हिल है। ये अगर ये हिल नहीं होता तो कोई भी फ्लाइट यहाँ से डाइवर्ट नहीं होती। बोल टाइप है। करेक्ट, इट्स अ बोल, इट्स अ वैली। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरे चारों तरफ पहाड़ है, वो पहाड़ है, ये पहाड़ है, और सारा फ्लाइट एक ही तरफ से लैंड करता है और एक ही तरफ को जाता है। हर फ्लाइट की एक लिमिटेशन होती है जो कि विंड स्पीड से होती है। अगर वो टेल विंड स्पीड एक्सीड करता है तो कोई भी फ्लाइट को लैंड करना सेफ नहीं होता है। जो लैंडिंग डिस्टेंस हमारी जो हवाई पट्टी है वो कम पड़ जाती है और आप उसको रोक नहीं पाएंगे, वहाँ पर आप कच्चे में जा सकते हैं। अगर ये हिल नहीं होता तो कोई भी फ्लाइट यहाँ से डाइवर्ट नहीं करती। ये जो इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम जो अभी 18 अप्रैल को एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया ने कहते हैं इनॉग्रेट कराया हमारे द्वारा, और जो एफी लाइटिंग सिस्टम आज जो हम डिक्लेयर कर रहे हैं अवेलेबल, इसके साथ साथ ये कह सकते हैं कि अगर 10 फ्लाइट डाइवर्ट करती थी सीजन में, तो शायद 3 फ्लाइट डाइवर्ट करेंगे, 7 फ्लाइट हम मैनेज करेंगे लैंड करने के लिए। और एक सवाल है मेरा तरफ से, वो सवाल ये है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2-1 साल पहले रात को 12 बजे कोई फ्लाइट यहाँ से छोड़ता था कलकत्ता के लिए, शायद वो चार्टर्ड फ्लाइट था। उस टाइम ये फैसिलिटी ना हो तो ये कैसे वो यहाँ से? करेक्ट। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, मिलिट्री फ्लाइंग हम लोग 24/7 365 डेज ऑपरेट कर रहे हैं, तो हमारे पास पोर्टेबल एयरफील्ड लाइटिंग सिस्टम है। उस समय उस फ्लाइट को पोर्टेबल एयरफील्ड लाइटिंग सिस्टम के लगाने के बाद हमने उसको कहते हैं लॉन्च किया होगा। आई एम नॉट श्योर 2 साल पहले यहाँ पर कैसे अरेंजमेंट किया गया था, बट हाँ, commercial flight now it is depending upon the risk taking ability of that. 2 साल पहले, it is going 4 पहले years back. जब Some portable Air India was operating. Okay. It is on the non-precision approach there. हाँ, तो he can answer, Commander Hussain. Flight was earlier operating. It was coming as a non-precision. Now with the ILS, it has become precision approach that way. And what we are doing today, we are launching. It is giving, other than the instrument, you have to give a visual guidance to the aircraft. So this lighting system actually giving you the visual guidance. Means if you are coming based on the instrument and you don't have any visual guidance, then all of a sudden you will not be able to control your aircraft. You will not have a guidance to go. So this lighting system, along with the central line light and edge light, is giving you that precision guidance after landing where you will go. आप ये समझ सकते हैं कि अगर आप आंखों में पट्टी बांध ले और आपको अगर कार चलाने का मौका दिया जाए तो आप क्या कार रोड में सीधे चला सकते हैं, और अगर टर्न से उसको नेविगेट कर सकते हैं। लेकिन इंस्ट्रूमेंट लाइटिंग सिस्टम के साथ साथ एफी लाइटिंग सिस्टम जो आ गई है, इसके साथ साथ ये केपेबल है। कहने का मतलब है, ऑब्वियसली पायलट की आंखों में पट्टी नहीं बंधा हुआ है, पर उसको दिखाई कुछ नहीं दे रहा है, बाहर कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट है, एक एक्सेस होता है और एक ही एक्सेस होता है। उसके हिसाब से आपको ऐसा गाइडेंस मिलता है कि आप बिल्कुल सीधे आएंगे और आपकी हाइट भी सीधे से कम करते जाएंगे और एग्जैक्टली एट द राइट पॉइंट आप टच डाउन कर सकते हैं। ये काम है इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम का। ये बोल टाइप एयरपोर्ट होने के नाते यहाँ पायलट P1 छोड़ के, शायद अभी भी P1 पायलट छोड़ के कोई लैंड नहीं कर सकता। दैट इज करेक्ट, दैट इज करेक्ट, आप सही बोल रहे हैं। जो P1 पायलट होते हैं वो लेफ्ट में बैठते हैं एयरक्राफ्ट के। जैसे अगर हम कॉकपिट में अंदर जाते हैं और अगर बाहर की तरफ देख रहे हैं तो यहाँ जो पायलट बैठे हैं वो P1 है, उन्हीं को अलाउड है लैंडिंग करना। और हम लोग सिंस मिलिट्री में है, हम लोग
प्रोग्रेस करते रहते हैं कि P1 और P2 दोनों को हम ट्रेनिंग करते रहते हैं, बिकॉज देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ द मिलिट्री नेसेसिटी। आपका एयरक्राफ्ट बिल्कुल भी रनवे के सेंटर लाइन से ऊपर से आएगा एंड बिल्कुल डिविएशन नहीं होगा, एंड एक्यूरेट गाइडेंस, जो हाइट का गाइडेंस है वो भी बिल्कुल ऐसा होगा जैसे अगर आप दूर हैं 3 किलोमीटर दूर है तो आप हाइट पे हो गए, बिल्कुल 300 मीटर पे तो आप बिल्कुल लोअर हाइट पे। वो हमारा यहाँ से जो हमारे सिग्नल हमको जो एयरक्राफ्ट को भेजते हैं, एयरक्राफ्ट वो सिग्नल रिसीव करेंगे और उसके हिसाब से अपने आप को मनूवर करेंगे। हम कोई सिग्नल यहाँ से ATC से नहीं देते हैं। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।